So I hope you guys are enjoying arithmetic progressions. Okay. And before we begin today's session, let me tell you that this session is very important. Every sum that we are going to take is of great importance for your exams. Okay. So so before we begin with the next type of questions on AP, let's revise one question. Yes, the concept that we did yesterday. Find the number of integers between 50 and 300. Between 50 and 300 which are divisible by 7. ठीक है. So पहला नंबर है 50, 51, 52, 53, ऐसे करते करते 297, 298, 299 और 300. So which is the first integer between 50 and 300 which is divisible by 7? देखो 49 is divisible by 7. Yes? या फिर अरे 7 के टेबल में यार 56 is the first integer, है ना? So हमारा AP क्या बनेगा? 56, उसके बाद 63, उसके बाद 70, which is the last integer divisible by 7. क्या करेंगे? 300 को 7 से डिवाइड करेंगे. Yes, 7 4s are 28, 20, 7 2s are 14, 6 is the remainder. 300 में से 6 subtract कर दो, 294. So the last integer is 294. Correct? अब हो गया. A is equal to 56, D is equal to 7, हाँ कि नहीं? And AN is equal to 294. N is something that you have to find out. Find the number of integers. कितने integers है इस sequence में या इस AP में, है ना? So खत्म. AN is equal to A plus N minus 1 into D. Yes? So ये कितना हो जाएगा? This is 294 is equal to 56 plus N minus 1 into D कितना है? 7. Please calculate and find out N. Please इतना कर लो. Yes? इसको पहले इधर subtract करो, फिर 7 से divide करो, फिर 1 add करो. ठीक है? So this is just for revision. Now let's begin other questions from this topic. Every question is important. बहुत ज़्यादा. बीच में एक नया concept भी आएगा. Same formula, थोड़ा concept अलग रहेगा. Fine? Let's begin. Now this question is definitely not different though, but हमने जो किया उससे थोड़ा सा अलग लगा इसलिए ले लिया. ठीक है? The sum of 4th and 8th terms, 4th and 8th terms of the AP is 24. मतलब A4 plus A8 is equal to 24. The sum of 4th and 8th term. And the sum of 6th and 10th term. The sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. इसका मतलब क्या है? देखो A plus 3D है ना, A plus 7D is equal to 24. ये क्या आएगा? 2A plus 10D is equal to 24. इसको 2 से डिवाइड कर दो. A plus 5D is equal to 12. This is my equation number 1. Correct? यहाँ देखो A plus 5D और ये है A plus 9D is equal to 44. है ना? 2A plus 14D is equal to 44. इसको भी 2 से डिवाइड कर दो. ये हो जाएगा A plus 7D is equal to 22. खत्म. साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. 7D is equal to 22. A plus 5D is equal to 12. सब्ट्रैक्ट, ये कटा. 7 minus 5 2D is equal to 10. D is equal to 5. Yes? यहाँ डाल दो D is equal to 5. A plus 25 is 12. A is equal to minus 13. Yes? And find out the series. A minus 13 है, तो first term is minus 13. Second term will be minus 8 plus 5. Third term will be minus 3 plus 5. अरे A1, A2, A3 निकाल लेना तुम लोग. Fine? अब word problems करते हैं कुछ. The question says Subha Rao started working in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees
and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income become 7,000? है ना, देखो गाइस 1995 में उसका इनकम कितना था 5,000, 1996 में कितना हो जाएगा 5,200, 200 से हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको, है ना। 1997 में कितना हो जाएगा 5,400, फिर से 200 का इंक्रीमेंट मिला, ऐसे करते 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 कभी तो उसका सैलरी 7,000 हो गया। यस, बोल रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज। आई बात समझ? सो इज इट एन एपी? ऑफ कोर्स, देखो ए कितना है 5,000, हिज ईयरली सैलरी इज इन एपी, है ना। डी कितना है देखो 5,200 माइनस 5,000 which is nothing but 200 rupees. See, increment of 200 each year. Yes, तो 200 and AN कभी तो जाकर के 7,000 हो गया and you have to find N. N will give us the number कि कितने साल बाद the salary will become 7,000. Yes, so this is an AP. AN डाल दो और n निकालो, an is equal to a plus n minus 1 into d. Yes, 7,000 is 5,000 plus n minus 1 into 200, ये इधर जाएगा 2,000 divided by 200 is equal to n minus 1, correct? n minus 1 is equal to 10, n is equal to 11. Yes, see now the question is not to find n, बोल रहा है in which year, तो कौन से साल में सैलरी इतना हो गया 7,000 ये बताओ। Yes, so guys see this is the first year. Yes, first year is 1995, तो 11th year कौन सा रहेगा 11th? बच्चे क्या करते हैं देखो 1995 में 11 साल ऐड कर देते हैं, सो 2006 आंसर आ जाता है उनका, विच इज रॉन्ग। 2006 ईयर में नहीं हुआ सैलरी इतना, 2005 में हुआ, बिकॉज गाइज दिस इज द फर्स्ट ईयर। देखो तो यस, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, काउंट करो 98, 99, 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5। यस, एक साल 2, 3, 4, यस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11th ईयर, है ना। सो द आंसर इज इन विच ईयर, इन 2005। आई बात समझ? मतलब मोस्टली तुम लोगों का बर्थ ईयर रहेगा 2003, 4 रहेगा सबका, या एनीवेज 2005 इज द आंसर इन द ईयर 2000। प्लीज 2006 मत लिख के आना, देखो ये गलती करते हैं, है ना। दिस इज द फर्स्ट ईयर, इसको हमने फर्स्ट ईयर कंसिडर किया है। यस, सो द 11th ईयर विल बी 2005 एंड दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यस, नेक्स्ट देखो। ओके, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। साल के पहले हफ्ते में शी सेव्ड ₹5 and then increased her weekly savings by ₹1.75. yes, देखो फर्स्ट वीक में उसके पास इतने पैसे थे साल के, सेकेंड वीक में हाउ मच शी विल हैव प्लस 1.75, इसमें प्लस 1.75 कर दो। सी शी इज इंक्रीजिंग हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, है ना, तो ये हो जाएगा 6.75। थर्ड वीक में इसमें और प्लस 1.75 कर दो। यस, तो प्लस 1.75, करेक्ट। तो 1.75 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8.25। यस, 8.50 होगा ना, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे करते 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 हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 इन द nth वीक। कभी तो उसका सेविंग हो जाएगा 20.75 रुपीज। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, nth वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक,
ऐसे उसका सेविंग्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। इन विच वीक हर सेविंग्स विल बी दिस मच रुपीज। यस, तो हो गया। फिर a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 1.75, an इज इक्वल टू 20.75। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यस, so 20.75 is equal to 5 plus n minus 1 into 1.75। 5 को सब्ट्रैक्ट करो इधर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20.75 minus 5 is equal to n minus 1, और इसको 1.75 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, करेक्ट। n minus 1 is equal to 15.75 divided by 1.75, पॉइंट से पॉइंट कटा, n minus 1 is equal to, this is equal to 9, yes, n is equal to 10। so in the 10th week her saving amount will be this much। मतलब सिर्फ 10th वीक में उसने इतना सेव किया। देखो पहले हफ्ते में 5 रुपए, दूसरे हफ्ते में इतने, है ना, नेक्स्ट वीक में इतना, ऐसे करते करते जब 10th वीक आया तो 10th वीक में उसने 20.75 रुपीज का सेविंग किया, खत्म, एज सिंपल एज दैट। आई बात समझ? यस। सो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एकदम सिंपल सिंपल से। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एपी में है, दैट्स इट। इफ यू अंडरस्टैंड कि हाँ एपी है, खत्म हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट दैट वी आर डूइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय, एक सीक्वेंस है उसका जनरल an टर्म दे दिया है। सी दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिड, an nth टर्म दे के रखा है। यस, कोई तो सीक्वेंस है, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, है ना, हमको नहीं पता एपी है या नहीं। देखो हर सीक्वेंस का एक जनरल टर्म रहेगा, हाँ कि नहीं। जैसे ये सीक्वेंस है 1 4 9 25 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी तो nth टर्म रहेगा ना। क्या ये एपी है? बिल्कुल नहीं। स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4 एपी है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका भी nth टर्म होगा ना कुछ ना कुछ। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे उसका nth टर्म। तो कोई तो एक सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है मुझे नहीं पता, उसका nth टर्म है -3n + 5। यस, बोल रहा है इज द सीक्वेंस इन एपी, क्या ये एपी का सीक्वेंस है या नहीं है। इफ सो फाइंड द 11th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दो अच्छे से। क्या कर, देखो एपी क्या होता है, एपी वो होता है जिसमें कॉन्जिकेटिव टर्म्स का डिफरेंस इज सेम, हाँ कि नहीं। यस, मतलब a2 - a1 is same as a3 - a2 is same as, yes, is same and is a constant value। देखो अभी तक d की वैल्यू ऐसे आ रही थी 5, d is -3, d is equal to 7, d is equal to -5, ये कांस्टेंट नंबर है, यस और नो। यस, सो जो कॉन्जिकेटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है वो सेम होता है और एक कांस्टेंट नंबर होता है। अगर इसके कॉन्जिकेटिव टर्म्स का सम डिफरेंस कांस्टेंट आया तो हम बोलेंगे एपी है, अदरवाइज नहीं है। देखो जैसे a2 - a1, a3 - a2, है ना, a4 - a3, एक के बाद एक कॉन्जिकेटिव टर्म्स, करेक्ट। अगर तुमको बोला जाता कि a1 निकालो तो तुम क्या करते, n की वैल्यू 1 डाल देते, तो a1 is equal to -3 × 1 + 5, हाँ कि नहीं। यस, अगर तुमको बोलते a2 निकालो, a2, तो तुम क्या करते, a के जगह n के जगह 2 डाल दो, 3 × 2 + 5, ऐसे करते हो, करेक्ट है ना। तो अब देखो तुमको दे रखा है an, योर सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एग्जाम में जो लिखना है ये तो सब समझा रहा था मैं। an is equal to 3n + 5। an से पहले की टर्म क्या रहेगी, an से पहले nth टर्म,
यस जैसे मैं बोलता हूँ सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ के पहले की टर्म क्या रहेगी, 6 माइनस 1 मतलब फिफ्थ टर्म, हाँ कि नहीं। सपोज 10th टर्म है, मैं बोलता हूँ इसके पहले वाली टर्म बताओ, तो तुम बोलोगे सर 9th टर्म इसके पहले आएगी, हाँ कि नहीं। तो n के पहले कौन सी टर्म आएगी, n माइनस 1, हाँ कि नहीं। तो a ऑफ n माइनस 1 कितना रहेगा, n के बदले n माइनस 1 डाल दो प्लस 5, या सुनो, अरे देखो फर्स्ट टर्म निकालना है तो n के बदले 1 डाला, सेकेंड टर्म निकालना है तो n के बदले 2 डाला, अभी an दे रखा है, n माइनस 1th टर्म निकालना है तो n के बदले n माइनस 1 डाल दो यार, या सुनो। दिस इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 3 प्लस 5, करेक्ट, विच इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 8, करेक्ट। दिस इज an है ना, दिस इज an माइनस 1। क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए, an के पहले क्या आएगा, an माइनस 1, हाँ कि नहीं। देखो a1 a2 a3 ऐसे करते करते an माइनस 2 an माइनस 1 एंड an, देखो इसके पहले का टर्म an माइनस 1, इसके पहले का टर्म n माइनस 2, इसके पहले का टर्म n माइनस 3, ऐसे करते 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 n माइनस 1 तक, तो a1 आएगा, करेक्ट। नाउ ये दोनों हो गए ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो कैन आई सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, देखो an माइनस a ऑफ n माइनस 1, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे, जैसे हम a3 माइनस a2 करते हैं, a4 माइनस a3 करते हैं, तो an माइनस an माइनस 1, a ऑफ n माइनस 1, यस। तो ये क्या आएगा, देखो माइनस 3n प्लस 5 माइनस ब्रैकेट में माइनस 3n प्लस 8, करेक्ट। कितना ये माइनस 3n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 8, 3n से 3n कटा, यस, 5 माइनस 8 इज माइनस 3, an माइनस a ऑफ n माइनस 1 इज माइनस 3, आया एक कांस्टेंट वैल्यू। देखो a4 माइनस a3 क्या मिलता है, d कांस्टेंट वैल्यू, a3 माइनस a2 क्या मिलता है, d कांस्टेंट वैल्यू, हाँ कि नहीं। इफ दिस इज अ प्योर नंबर then the given sequence is an AP, ये सीक्वेंस AP में है, खत्म। तो तुम्हारा एग्जाम का सॉल्यूशन क्या है, यहां से चालू होगा, यस, ये इधर का पार्ट सिर्फ, और यहां खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब बेसिकली तुमको क्या करना है, an माइनस a ऑफ n माइनस 1 ये निकालना है, जो हम अभी तक कर रहे हैं, a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 an माइनस an माइनस 1, है ना। अगर ये एक कांस्टेंट नंबर आया, कांस्टेंट वैल्यू, माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, राइट, तो हम बोलेंगे कि द सीक्वेंस इज इन AP। आई बात समझ, यस। एक और क्वेश्चन बताता हूं, सेम, देखो, show that the given sequence defined by an is equal to 2n square plus 3 is not an AP। यार AP है या नहीं हम डिसाइड करेंगे, लेट्स फाइंड आउट सॉल्यूशन, ठीक है। an is equal to 2n square plus 3, कैन वी फाइंड आउट a of n minus 1, n के बदले n minus 1 डाल दो, 2 into n minus 1 का स्क्वायर प्लस 3, कितना होगा ये, थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस बी होल स्क्वायर से उसको एक्सपांड किया, इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 3, ये 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, सो a ऑफ n माइनस 1 कितना हो गया, देखो तो जरा, 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 5, यस। अब हम क्या करेंगे, an माइनस a ऑफ n माइनस 1, an कितना है 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस a ऑफ n माइनस 1 कितना है 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 5, यस, माइनस 2n स्क्वायर
+4n -5, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज, इससे ये कटा, बचा क्या देखो 4n -2. यस, इज दिस अ कांस्टेंट? नो, इट इज नॉट अ कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब सिर्फ एक नंबर, यहां देखो n आ गया, n इज नॉट अ कांस्टेंट, n इज अ वेरिएबल. नंबर ऑफ ईयर्स तो चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ईयर्स हमेशा चेंज हो रहा है. आ रही है बात समझ? सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट. यस, as the difference between two consecutive terms is not a constant value, yes, it is not an AP, not an AP. AP नहीं है ये. yes, तो एक AP वाला एक AP नहीं है वाला क्वेश्चन कर रहा है. सो इफ इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 3 -3 कुछ भी एक नंबर, देन हम बोलेंगे वो AP है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि AP नहीं है. यस, आई होप एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है. एग्जैक्टली ऐसे सॉल्व करना है इसको. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. स्टेट इफ द सीक्वेंसेस डिफाइंड इन द फॉलोइंग आर AP. क्या ये AP है या नहीं है? यार देखो यहाँ पे ना वैल्यूज दी है, तो जब वैल्यूज दी होती है तो इट इज वेरी सिंपल, है ना. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द फर्स्ट मीटर ऑफ अ वेल इज ₹250. The cost increases by ₹100 for every subsequent meter. Yes, AP है, ये तो देख के ही समझता है. देखो वेल को डिग करना है, सो 1 मीटर है, 2 मीटर का कॉस्ट, 3 मीटर का कॉस्ट, 4 मीटर का कॉस्ट एंड सो ऑन. यस, फर्स्ट मीटर का कॉस्ट कितना है? ₹250. द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय ₹100 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर. तो इसमें +100 हो जाएगा 350, +100 450, +100 550. देखो डिफरेंस इज 100, यस और नो, हेंस इट इज एन AP. खत्म. यस, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेकंड और थर्ड दोनों इंपॉर्टेंट. देखो, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. मेरे पास 1000 रुपीज है, हमने उसको इन्वेस्ट किया 5% सिंपल इंटरेस्ट पे. आई होप सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सबको पता है. द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर्स. ठीक है, देखो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है ना. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? PRT अपॉन 100. यस, सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हाउ मच इज द इंटरेस्ट? PRT by 100, 5% इंटरेस्ट है, तो कैलकुलेट करते हैं. 1000 इंटू R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इज 1 ईयर. एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? डिवाइडेड बाय 100. यस, 50 रुपीज. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज ₹50. ठीक है. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यहां कैलकुलेट करता हूं सेकेंड ईयर का, PRT अपॉन 100. yes, at the end of the years calculate करना है. so 1000 into rate is 5, time is 2 years upon 100, yes, is equal to ₹100. so second year के end में the interest will be ₹100. at the end of third year PRT upon 100, principal is 1000, 1000 रुपए मेरे पास, rate of interest is 5 into 3, 3 years के end में ये कटा, कितना आया? 150. एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 150. 4 वैल्यूज तो भी तुमको निकालना मैंडेटरी होता है. यस, अगेन एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 1000 इंटू 5 इंटू टाइम इज 4 ईयर्स नाउ. इससे ये कटा, कितना होता है? 20, 200. सो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इट इज 200 एंड सो ऑन. यस, so is the interest at the end of each year in AP? बिल्कुल, this minus this 50, this minus this 50, this minus this 50. so yes, it is in AP. आई बात समझ? yes, अब इससे एक चीज याद रखोगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इन AP ऑलवेज. सिंपल इंटरेस्ट AP में होता है हमेशा, ये चीज याद रखना. क्लियर है? Now, third question.
the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at 10% per annum compounded annually. The amount of money, yes, इंटरेस्ट नहीं निकालना है यहाँ पे. मैंने बोला यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इन एपी, यहाँ पे अमाउंट की बात चल रही है, इंटरेस्ट की नहीं. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at 10% per annum. What is the formula of compound interest? P into 1 plus R by 100, yes, raised to n. अमाउंट का फॉर्मूला है वैसे, अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R by 100 raised to n. ठीक है. प्रिंसिपल 10,000 दे रखा है, तो व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर? 1 ईयर के बाद 10,000 into 1 plus रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, 100 रेज टू 1. ठीक है, फाइंड आउट करो कितना होता है ये, 1/10 है ना. सो 10,000 सॉरी 10,000 है ना, 1,000 10,000 इंटू 1.01, करेक्ट. 1.01 नहीं, 1.1. 1/10 is 0.1 ना, so 1 plus 0.1 is 1.1. A2 is 10,000 into 1 plus R by 100 का square. Time is 2 years. Yes, so 10,000 into ये कितना हो जाएगा 1.1 का square. Yes, A3 is equal to 10,000 into 1 plus 10/100 का क्यूब. 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? दिस इज 10,000 इंटू 1.1 का क्यूब. यस, एंड A4 सिमिलरली विल बी 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100 रेज टू 4, मतलब 10,000 इंटू 1.1 रेज टू 4. प्लीज कैलकुलेट कर लेना ये और चेक करना, इट विल नॉट बी इन एपी. एपी में नहीं होगा ये, है ना. इसके लिए एटलीस्ट तुमको 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना. फिर A2 माइनस A1 करना एंड A3 माइनस A2 करना. ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगे. ये 11,000, सो 100 पे अगर okay 13300. okay, this will be the answers. yes, तो A2 minus A1 देखो, A3 minus A2 देखो, they are not equal, therefore it is not an AP. yes, so guys क्वेश्चन समझना है, सॉल्यूशन तो बहुत इजी है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है check whether the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at 10% compounded annually. AP में है या नहीं है? तो अमाउंट AP में है या नहीं है? A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो. फाइन, कैसे निकालना है? A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to n, compound interest का basic formula, where R is the rate of interest, P is the principal, n is the time. करेक्ट. सो ये सॉल्व करोगे तो ये 3 वैल्यूज आई. चेक A2 माइनस A1 निकालो, A3 माइनस A2 निकालो. अगर ये दोनों इक्वल है तो AP में है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो AP में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है उनका, और ये दोनों सेम नहीं होता है. सो हेंस नॉट इन AP. खत्म. क्लियर है? आई बात समझ? यस, परफेक्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब AP है, लेकिन ध्यान दो, अब जो बोल रहा हूं वही लेना है, रीजन भी बता दूंगा कुछ टाइम में. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3 consecutive numbers, yes, are in AP, है ना, तो वो 3 नंबर तुमको क्या लेने हैं समझ लो. A प्लस D और A माइनस D, ये 3 नंबर लेना है. The first number is A minus D
the second number is a and the third number is a plus d. तीन numbers which are in AP. Yes, इनका difference देखो कितना है, a minus d, a minus d is d. अरे देख लो यार करके, a minus d, a minus a plus d, तो डिफरेंस कितना आया d. इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, a plus d minus a, तो द डिफरेंस इज d. है कि नहीं ये तीनों नंबर्स AP में? बिल्कुल है ना. अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, फोर कॉन्जिकेटिव नंबर्स ऑफ AP के चार कॉन्जिकेटिव नंबर्स, तो चार नंबर्स को ऐसा लेंगे, a plus d, a minus d, a plus 3d, इधर से माइनस लेता हूं, ओके आई विल इरेज दिस, a minus d, a plus d, a minus 3d, a plus 3d. फोर कॉन्जिकेटिव नंबर्स इन AP अगर है तो चार नंबर्स को ऐसे ही लेना है. देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है. यस, चेक कर लो, a minus d minus a plus 3d, a से a कटा minus d plus 3d, इनका डिफरेंस आया 2d, है ना. इन दोनों का डिफरेंस देखो 2d आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखो 2d आएगा. है डिफरेंस सेम? यस और नो? So I can take these four numbers as consecutive numbers in AP. Four consecutive numbers in AP, तो ऐसे लेना है ना. अगर आता है फाइव consecutive numbers in AP, पांच नंबर है AP में which are consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले, है ना. तो मिडिल नंबर रहेगा a, इधर रहेगा a minus d, इधर रहेगा a plus d, इधर रहेगा a minus 2d, इधर रहेगा a plus 2d. यस, इनके बीच का डिफरेंस देख लो, d is the difference, d is the difference, d is the difference, d is the difference. हुए कि नहीं AP में ये पांच नंबर्स, राइट. और एक 6 का भी कभी कभी आ जाता है. 6 consecutive numbers are in AP. 6 नंबर है जो AP में है. अगर 6 नंबर AP में आया क्वेश्चन, तो 6 नंबर को ऐसे लेना है, a minus d, a plus d, a minus 3d, a plus 3d, a minus 5d, a plus 5d. Yes, these are the 6 numbers in AP. इनका डिफरेंस आता है 2d. Yes, ये डिफरेंस आता है 2d, ये डिफरेंस आता है 2d, ये डिफरेंस आएगा 2d, और ये डिफरेंस भी 2d. So the difference of consecutive terms is 2d, 2 into d, whatever, d कुछ भी हो सकता है. आई बात समझ? तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स द सेम, बट कॉन्सेप्ट ये, अगर बोला कि 3 consecutive numbers are in AP, तो ये ही 3 नंबर लेना. क्यों ये 3 लेना मैं बताता हूँ. सी, ऐसे भी ले सकते हो, पहला नंबर a, दूसरा नंबर a plus d, तीसरा नंबर a plus 2d. हाँ कि नहीं? देखो इनका डिफरेंस भी d है, इनका डिफरेंस भी d है, तो मैं ये भी ले सकता था. हाँ कि नहीं? जैसे हम a1, a2, a3 लेते हैं ना, वैसे ये a, तो दूसरा नंबर हो गया a plus d, तीसरा नंबर क्या हो गया a plus 2d. ये भी तो 3 consecutive numbers है ना. लेकिन ये नहीं लेना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा उससे. ठीक है, चलो सम देखते हैं, उस पे से समझा दूंगा क्यों ऐसा, क्यों ये समझाता हूं. सी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज -12. AP में कोई 3 नंबर्स है, 3 नंबर है जो AP में है, उनका सम है -12 एंड प्रोडक्ट इज 36. द सम is -12 and guys the product is 36. find the numbers. ठीक है, अगर हम ऐसा लेते, अगर if, तो भी सॉल्व तो होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए. सी, पहला नंबर a, दूसरा नंबर a plus d, तीसरा नंबर a plus 2d, इनका सम कितना है सबका -12. तो क्या आया, 3a plus 3d is equal to -12.
है ना, 3 कॉमन, a प्लस डी इज इक्वल टू -12, a plus d is equal to -4. This is my first equation. Now the product of the three numbers, see, a multiplied by a plus d multiplied by a minus d is equal to 36. ठीक है, a plus d की वैल्यू कितनी है, -4, a into -4 into a minus d is equal to 36, a into a minus d is equal to -9. करेक्ट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ कि नहीं. सी आई हैव 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स, आई कैन इजीली सॉल्व दिस. इजीली नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेडली सॉल्व होगा, लेकिन सॉल्व होगा. ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट. यस, लेकिन ये क्यों हुआ, देखो मैंने पहला नंबर लिया a, दूसरा नंबर लिया a प्लस डी और तीसरा नंबर लिया a प्लस 2d, है ना. ये देखो इनका डिफरेंस है d और इनका डिफरेंस भी है d. करेक्ट, लेकिन इससे सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो यहां पे देखो 3 नंबर्स है AP में, तो हम क्या लेंगे, लेट द 3 नंबर्स बी. पहला नंबर a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी, ऐसे 3 नंबर लेंगे. देख लो यहाँ पे इसी ऑर्डर में लेना, सीक्वेंस में. फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी, बीच में a और फिर a प्लस डी. ठीक है, कैसे याद रखना है, देखो बीच में a लिख दो, इधर a माइनस डी लिख दो, इधर a प्लस डी लिख दो, खत्म. है ना, आई बात समझ, खत्म, फिर हो गया सम. नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सम इज -12, सम इज -12, तो तीनों को ऐड करो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू -12. d से d कटा, है ना, सो यू हैव 3a इज इक्वल टू -12. a की वैल्यू कितनी मिल गई, -4. आई बात समझ. यस, द वैल्यू ऑफ a इज -4. तो इससे बेनिफिट क्या होता है, हमेशा हर सम में पहला कंडीशन सम का ही रहेगा, दूसरा कंडीशन प्रोडक्ट के बदले कुछ भी दे सकता है. ठीक है, तो इससे एक वैल्यू तुमको हमेशा मिल जाएगी. सेकेंड कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 36. a की वैल्यू डाल दो, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इंटू वैल्यू ऑफ a इज -4 इज इक्वल टू 36. है ना, व्हाट इज दिस, a प्लस डी इंटू a माइनस डी. a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ d स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन -4 इज -9. है ना, a की वैल्यू डाल दो -4, सो -4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9. करेक्ट, अब ध्यान दो अच्छे से, ये हो गया 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ये 16 इधर जाके -16 हो जाएगा, सो -25 माइनस डी स्क्वायर इज -25, तो डी स्क्वायर इज 25, डी इज इक्वल टू प्लस और -5. अगर तुमने ये प्लस और -5 नहीं लिखा, गया, आंसर नहीं आएगा तुम्हारा. ठीक है, तो बच्चों a की वैल्यू मिल गई, d की भी वैल्यू मिल गई. उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो फाइंड द नंबर्स, तीनों नंबर तुमको फाइंड करना है. ठीक है, तो आगे का सम यहां सॉल्व कर रहा हूं. देखो a की वैल्यू जब -4 होगी और d की वैल्यू जब 5 होगी, यस, तो नंबर्स क्या रहेंगे, a माइनस d इज द फर्स्ट नंबर, सो -4 -5 -9. a is the second number, -4, and a plus d is the third number, -4 plus 5 1. So the three numbers are -9, -4 and 1. yes, लेकिन जब a की वैल्यू -4 होगी और d की वैल्यू -5 होगी, a की तो a की वैल्यू है लेकिन d की 2 वैल्यूज आई, तो दोनों वैल्यूज के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. a माइनस डी इज द फर्स्ट नंबर, a कितना है
-4 minus -5, -4 plus 5 1, a is -4 and a plus d is -4 plus -5, which is -9. So the three numbers can be 1, -4, 9. ये दोनों अलग आंसर्स है. यस, तो आखिरी में आंसर लिखना पड़ेगा. द नंबर्स आर -9, -4, 1 और 1, -4, 9. फाइंड द नंबर्स बोला है ना. तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तीनों नंबर सीक्वेंस में बताना जरूरी है. आ रही है बात समझ? सो इफ 3 नंबर्स आर गिवन देन ये 3 नंबर ले लेना. कुछ भी नहीं बचेगा सॉल्यूशन में. हर सॉल्यूशन ऐसे ही बनेगा. राइट? देखो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस करवाता हूं 4-5. फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, है ना, whose sum is -4. देखो हमेशा सम दिया रहेगा, हमेशा पहला कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन देखो क्या बोला है, whose sum is 4 and the sum of whose squares is 84. Sum of squares is 84. ये दो कंडीशन दिया है. तो 4 नंबर्स इन एपी, तो कैसे लेते हैं हम? देखो a minus d, a plus d, a minus 3d, a plus 3d, है ना. सो हम बोलेंगे let the 4 numbers be, let the 4 numbers be this. ठीक है. now according to the first condition, इन चारों का सम इज -4. so a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to -4. फाइन. -3d से +3d कटा, -d से +d कटा. वी आर लेफ्ट विथ 4a is equal to -4. a की वैल्यू -1. पहला चीज एकदम खट से मिल जाता है. यस. अब अगली चीज देखो क्या बोला है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 84. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो ये है a minus 3d का स्क्वायर प्लस a minus d का स्क्वायर प्लस a plus d का स्क्वायर प्लस a plus 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 84. The sum of their squares is this. क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करें? कैसे क्या करें? एक्सपांड करो. एक्सपांड a minus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9d स्क्वायर प्लस a minus d का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 6d, बराबर ना. यहां भी गलत हो गया, 6ad चाहिए यहाँ पे. यस, 2 3 जा 6ad, या 6ad प्लस 9d का स्क्वायर इज इक्वल टू 84. करेक्ट. 6ad से 6ad कटा, 2ad से 2ad कटा, क्या बचा? a स्क्वायर 2 3 4, 4a स्क्वायर, है ना. 9 प्लस 9 18, 19 20 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 84. a का वैल्यू डाल दो अब -1. अब डालो a का वैल्यू, है ना. 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज 84, है ना. ये 4, सो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 84 माइनस 4, ये 4 उधर माइनस हो जाएगा. d स्क्वायर इज इक्वल टू 80/20 विच इज 4, है ना. सो d का वैल्यू क्या आएगा? प्लस और -2. क्लियर है? नाउ द 4 नंबर्स आर
a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 2। तो हमारे 4 नंबर क्या है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। करेक्ट? सो -1 माइनस 3 इंटू 2, -1 माइनस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 3 इंटू 2। करो सॉल्व। यस, ये कितना हो गया, 3 2 6, -7 -3, ये कितना हो गया 1। करेक्ट? और ये कितना हो गया 3 2 6, -1 प्लस 6 5। So the four numbers are -7, -3, 1 and 5. When a is equal to -1 and d is equal to -2, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। तो क्या होगा, a कितना है, -1 माइनस 3 इंटू -2, -1 माइनस -2, यस, -1 प्लस -2, -1 प्लस 3 इंटू -2। सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यूज, अब सॉल्व करो। ये हो जाएगा +6, -1 प्लस 6 5, ये आएगा 1, ये आएगा -3, ये आएगा -7। सॉल्व करके देख लो, हमेशा उल्टा आएगा इसका, डोंट वरी। ये आया ना -7 -3 1 5, तो ये आएगा 5 1 -3 -7, है ना? तो यहाँ लिखो द फोर नंबर्स आर -7 -3 1 5 और 5 1 -3 7। खत्म। सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे गाइस, सारे। इसमें याद रखो हमेशा जो फर्स्ट कंडीशन है वो सम की ही रहेगी, सो दैट तुमको a की वैल्यू मिल जाए। dd कट जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है? और उसके बाद में सेकंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, a की वैल्यू डालो, d की 2 वैल्यूज मिलेगी, आगे सॉल्व करो। गेटिंग इट? यस। एक और सवाल ऐसा ही सेम टू सेम। फाइंड 5 नंबर्स इन AP। ग्रेट। हुज सम इज, देखो अगेन सम दिया है 12.5 मतलब 25/2 एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू लास्ट इज 2:3, है ना? सो हम बोलेंगे लेट द 5 नंबर्स बी। 5 नंबर कैसे लेते हैं? बीच में a माइनस डी, a प्लस डी। बच्चों याद रखो a माइनस 3d होता है, 2d नहीं लेना। a माइनस a माइनस 2d और यहाँ पे a प्लस 2d। 3d किस में होता है? 4 या 6 में, ठीक है? वो याद रखना। तो a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d, a प्लस 2d। क्लियर है? लेट द 5 नंबर्स बी दिस। फर्स्ट कंडीशन, उनका सम कितना है? a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस 2d इज 25/2। 2d से 2d कटा, d से d कटा, कितना आया? 5a इज इक्वल टू 25/2, है ना? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। a इज इक्वल टू 5/2। सेव कर लो इसको। अब देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म। ये है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म। इनका रेशियो a माइनस 2d अपॉन a प्लस 2d इज इक्वल टू 2/3। डन यार, या तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, करेक्ट, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, हाँ कि नहीं? यस। सो क्विकली सॉल्व इट। 3a माइनस 6d मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना? 2a प्लस 4d, ठीक है? तो क्या होगा, ये a इधर आ जाएगा। 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 4d प्लस 6d, 6d को उधर भेज दिया। a इज इक्वल टू, ये कितना है? 4 प्लस 6 10d। a की वैल्यू कितनी है? 5/2 डाल दो यहाँ पे, इज इक्वल टू 10d, है ना? 5 1 जा 5 2 जा, d इज इक्वल टू 1/4।
यहाँ पे एक ही वैल्यू आई डी की, एंड दैट्स ओके, है ना, जो आया वो आया, खत्म, हाँ कि नहीं। नाउ द 5 नंबर्स आर a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। डालो यार सब वैल्यूज अब प्लीज, है ना। a कितना है 5/2, ये आएगा 5/2 minus 1/4, 5/2 minus 2 into 1/4, 5/2 plus 1/4, 5/2 plus 2 into 1/4। प्लीज कैलकुलेट एंड लिख दो जो भी आएगा, क्लियर है। सो द 5 नंबर्स आर 1 2 3 4 5, क्लियर है। प्लीज सॉल्व कर लेना यार, वो तो कर ही सकते हो। सो द फर्स्ट 5 टर्म्स आर दिस, सॉल्व करके आंसर निकालो, क्लियर। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसा ही है सेम लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिवाइड 22 into 4 parts which are in AP। 22 नंबर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो चारों पार्ट्स AP में है, यस। मतलब क्या हुआ, देयर आर 4 नंबर, सपोज 10 है, 10 मैं बोलता हूं डिवाइड 10 into 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, है ना, यस। अब ध्यान दो, अगर ये 1 है, ये 2 है, यस, ये भी 2 है, या चलो इसको 3 ले लो, है ना, तो ये कितना हो गया 3 4 5 6, ये 4। सी आई हैव डिवाइडेड 10 into 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, तो व्हेन आई डिवाइडेड into 4 पार्ट्स, इन सब का सम कितना रहेगा 10, अरे हाँ कि नहीं। सो डिवाइड 22 into 4 पार्ट्स विच आर इन AP का मतलब क्या है, 4 नंबर्स आर इन AP जिनका सम 22 है। इसका मतलब है 4 नंबर्स आर इन AP, यस, whose sum is 22। मतलब अभी तक जो कर रहे थे वही है यार, हाँ कि नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस। डिवाइड 22 into 4 पार्ट्स, जैसे 10 को 4 इक्वल पार्ट्स में, सॉरी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना, 1 2 3 4, एंड बोला है दीज नंबर्स आर इन AP, है ना यार, ये देखो 1 2 3 4 आर इन AP, कॉमन डिफरेंस 1, करेक्ट। वैसे ही 22, इसका मतलब है 4 नंबर्स आर इन AP whose sum is 22। तो 4 नंबर्स AP में कैसे लेते हैं हम, A minus D, A plus D, A minus 3D, A plus 3D, ऐसा लिया जाता है। So let the 4 numbers be 1 2 3 4 according to the first condition, their sum, yes, is nothing but how much 22। आई बात समझ। तो डिवाइड 22 into 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब 22 को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो वो चारों पार्ट को ऐड करेंगे तो 22 मिलेगा, और वो चारों नंबर्स AP में है। सो सीधा सीधा ये 4 नंबर ले लो, इससे ये मरा, इससे ये मरा। 4A is equal to 22, A is equal to 22/4, which is nothing but 11/2। Save this, A is equal to 11/2। मजा आ रहा है, इजी है, बहुत अच्छा है, मजा भी आता है करने में, है ना। Such that the ratio of the products of the extremes to the product of the means is 5:14। अब ये extremes और means क्या है, ये तो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा है ना। ये और ये इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और ये इसको बोलते हैं मीन्स, हाँ कि नहीं। तो वो बोल रहे हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये दोनों है एक्सट्रीम्स, इनका प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स A minus 3D into A plus 3D, इसका रेशियो विद द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स A minus D into A plus D। बस ये सेकेंड कंडीशन ढंग से समझना, यस, इज 5:14, 5/14। आई बात समझ। सी वंस अगेन,
द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, रेशो लेना है, किसका रेशो, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स के साथ। इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, इन दोनों को बोलते हैं मीन्स, करेक्ट, जो बीच में होता है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रेशो इज दिस। यस, सॉल्व करो इसको। दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इज ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज 5/14, ठीक है। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यस, एक सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 5/14। यार क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो, कर सकता हो क्या यहाँ पे? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 9d है, यहाँ d है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके कर सकते हो, ठीक है, बट छोड़ दो। चलो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 14a स्क्वायर, 14 9 जा 126 d स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे 5a स्क्वायर माइनस 5d का स्क्वायर, 14a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5d स्क्वायर प्लस 126d स्क्वायर। ये आया 9a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा 121d का स्क्वायर। डाल दो a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 11/2, है ना। सो 9 इंटू 11 स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 121d स्क्वायर। 121 से 121 कटा, d स्क्वायर इज 9/4, सो d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3/2। प्लस माइनस भूल गए तो गया, खेल खत्म, करेक्ट। यार अभी 5 नंबर निकालने हैं, ओह कितना बोरिंग है, इजी है ना, यस, बट लेंथी हो जाता है, करेक्ट। सो a माइनस 3d, a माइनस d, 4 नंबर है ना, आई गेस, या 4 नंबर, a प्लस d, a प्लस 3d निकाल लेंगे ये तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग बहुत स्मार्ट हो यार, आई मीन यू गाइज आर रियली सो स्मार्ट। 11/2 a की वैल्यू और d की वैल्यू है 3/2, एक बार a की वैल्यू 11/2 और d की वैल्यू माइनस 3/2। यस, सो ऑल माय डियर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स प्लीज सॉल्व। a माइनस 3 इंटू 3/2, a की वैल्यू 11/2, 11/2 माइनस 3 इंटू, नहीं इधर 3 नहीं है ना, 3/2। यस, 11/2 प्लस 3/2, 11/2 प्लस 3 इंटू 3/2, प्लीज कर लो सॉल्व, ओके। और डिनोमिनेटर भी सेम है यार, तो फट से हो जाएगा। 11 माइनस 3 3 जा 9, 2/2 विच इज 1, 11 माइनस 3 इज 8/2 विच इज 4, 11 12 13 14, 14/2 विच इज 7, यस 9, 11 प्लस 9 20/2 विच इज 10, 1 4 7 10, इधर आएगा 10 4 7 1, खत्म, दी एंड। आई बात समझ? सो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, फाइन। सो आज का एक आखिरी सवाल करते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हाँ, द डिजिट ऑफ अ 3-digit पॉजिटिव नंबर आर इन AP एंड देयर सम इज 15। एक 3-digit नंबर है, यस, उसके जो डिजिट्स है वो AP में है, जैसे 3 4 5। सी दिस इज द 3-digit नंबर एंड द नंबर्स आर इन AP। देखो तो AP में है क्या? हाँ, जैसे 2 4 6, दिस इज द 3-digit नंबर एंड देखो ये AP में है, 2 4 एंड 6 आर इन AP, हाँ कि नहीं, ऐसे। और बोला है उनका सम है 15। The number obtained by reversing the digits is 792 more than the original number। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करो। देखो 3 नंबर्स है विच आर इन AP। लेट्स फर्स्ट राइट बोथ ओरिजिनल एंड रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर, ठीक है गाइस। देखो 3-digit नंबर है ना, सो यहां रहेगा 100s प्लेस,
यहाँ रहेगा टेंस प्लेस और यहाँ रहेगा यूनिट्स प्लेस, हाँ कि नहीं? और जब भी 3 नंबर एपी में होते हैं हम कैसे लेते हैं? ए माइनस डी, ए प्लस डी, हाँ कि नहीं? चलेगा? तो गाइज इसका रिवर्स नंबर क्या रहेगा? ये ए प्लस डी इधर आ जाएगा, बीच में का ए तो ए ही रहेगा और ये वाला डिजिट इधर आ जाएगा, हाँ कि नहीं? खत्म। समझ में आ रहा है? सी 246 का रिवर्स क्या है? 642, ये इधर ये इधर, है ना? सो बोला कि लेट्स द हंड्रेड्स डिजिट बी ए माइनस डी, बीच में वाला ए तो यूनिट्स वाला ए प्लस डी, खत्म। अब पहला कंडीशन, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 15। यस, तो लेट द डिजिट्स क्या क्या है हमारे? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसका सम है 15। d से d मरा, 3a इज 15, a इज 5, है ना? खत्म। अब क्या बचा यार? a तो 5 मिल गया। सेकेंड कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 792 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, है ना? मतलब रिवर्स नंबर इज 792 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, हाँ कि नहीं? यस, द रिवर्स नंबर इज 792 प्लस द ओरिजिनल नंबर। अब गलती करते हो यहां पर, अभी तक तो सब सही था गाइस, ये तो डिजिट्स है यार, नंबर क्या रहेगा? नंबर सी 2 4 6, ये नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, देखो 200 प्लस 40 प्लस 6 246, हाँ कि नहीं? ठीक है, पहले कंडीशन में डिजिट्स का सम दिया था, डिजिट्स का मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 ऐसे डिजिट का, इसलिए मैंने सिर्फ डिजिट को उठा के अलग अलग से ऐड किया। बात समझ में आ रही है? लेकिन ओरिजिनल नंबर या रिवर्स नंबर क्या होगा पता है? रिवर्स नंबर विल बी 100 इंटू ए प्लस डी, यस, प्लस 10 इंटू ए प्लस ए माइनस डी विल बी द रिवर्स नंबर। अरे हाँ कि नहीं? देखो ना, 100 इंटू 2, 100 प्लेस को इससे मल्टीप्लाई करो, ये डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट्स डिजिट पे जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 डिजिट नंबर का इतने टाइम से कर रहे हो वैसे ही है, इज इक्वल टू 792 प्लस द ओरिजिनल नंबर, हाँ कि नहीं? अब ओरिजिनल नंबर क्या रहेगा? 100 इंटू ए माइनस डी, 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई करो प्लस 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10a प्लस a प्लस यूनिट्स प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो, है ना? और इसमें 5 ये वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू 5 डाल दो ना, है ना? या पहले सॉल्व कर लो, 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस d इज इक्वल टू 792 प्लस 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d। यस, 100a से 100a कटा, 10a से 10a कटा, a से a कटा, करेक्ट? सही जा रहे? कुछ गड़बड़ ना? कितना बचा? 100d माइनस d इज 99d, और इधर से माइनस 100d प्लस d इज माइनस 99d, इधर आके हो जाएगा प्लस 99d इज इक्वल टू 792, करेक्ट? सो 99 प्लस 199 इज 198d इज इक्वल टू 792, d इज इक्वल टू 4 आएगा। यस, आ गया, खत्म, है ना? अब हमको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर देखो, तो ओरिजिनल नंबर क्या है?
दिस इज हंड्रेड्स प्लेस का यूनिट, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, करेक्ट। तो व्हाट इज दिस डिजिट, यहाँ पे डिजिट क्या आएगा, a माइनस डी, a इज 5, 5 माइनस 4, करेक्ट, ये a तो 5 और यहाँ पे 5 प्लस 4, सो दिस डिजिट इज 1, दिस डिजिट इज 5 एंड दिस डिजिट इज 9 एंड द नंबर इज 159। सी देख लो, 1 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से, इसको 1 से, यस है ना। देख लो डिजिट्स का सम 15 आ रहा है क्या यार, 1 प्लस 5 प्लस 9 15 है ना। सो फाइनल आंसर लिख दो, द नंबर इज 159 एंड दैट एंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ एपी। एपी का पहला पार्ट खत्म हुआ, मतलब एक फॉर्मूला, यस। सी सिर्फ ये क्वेश्चंस देखो, ये वाले जो हमने लास्ट में किए है ना ऑन दिस कॉन्सेप्ट, इसमें हमने एपी का फॉर्मूला यूज नहीं किया, सच बोले तो एक्चुअली किया है। सी ये एपी का फॉर्मूला यूज करके ही तो बनाया है कॉमन डिफरेंस वगैरह, करेक्ट। लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला हम तब से यूज कर रहे हैं an इज इक्वल टू an इज इक्वल टू, वो नहीं यूज किया यहां से आगे ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अदर ऑल क्वेश्चंस में वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला, यहां से हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, करेक्ट है ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। अब इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा उसमें देयर विल बी वन मोर फॉर्मूला ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स आएगा और उस पे रहेगा एक बड़ा सा एक्सरसाइज और फिर चैप्टर खत्म होगा। अरे बड़ा चैप्टर है इसलिए तो वेटेज भी ज्यादा है, फाइन। सो आई होप सब कुछ समझ में आया है अच्छे से, है ना। नाउ प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज, ट्राई इट वंस अगेन। जो क्वेश्चंस तुमको नहीं आया होगा, जिसमें डाउट होगा, वो फिर से सॉल्व करो, ठीक है। और फिर अगर कोई डाउट रहेगा तो हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। So that's it for today guys. Hope you guys are enjoying AP and understanding everything as well. See you guys, take care, bye.